Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे 9 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जिसकी थीम रहती है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। फिर बात करते हैं 9 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसिड क्राइम, ये भी 9 दिसंबर को। फिर 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं हम ह्यूमन राइट्स डे, जिसकी थीम रहेगी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। फिर 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज डे भी ऑब्जर्व करते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नोबेल प्राइज की मैं बात करूं तो नोबेल प्राइज फिजिक्स में कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। किस फील्ड में दिया गया था? क्वांटम एंटेंगलमेंट की फील्ड में दिया गया था। फिर 11 दिसंबर की बात करें तो यूनिसेफ डे, जिसकी थीम रहेगी ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। 11 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माउंटेन डे, जिसकी थीम रहेगी वीमेन मूव माउंटेन्स। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व करेंगे, थीम रहेगी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 14 दिसंबर को इंटरनेशनल एनर्जी डे और 16 दिसंबर को विजय दिवस, जिसको विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया अरितपत्ती विलेज इन मदुराई एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। मुंबई वो पहली सिटी बन गई इन साउथ एशिया टू टॉप सीडीपीज क्लाइमेट एक्शन लिस्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एल सीसी, इनको इनवाइट किया गया है एज द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे फॉर 2023। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। फिर इंडिया ने जीता इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी कहां पर होगा? विल बी बेस्ड इन तेलंगाना। नेक्स्ट बात करें, ओडिशा ने लॉन्च किया एनीमिया एरेडिकेशन प्रोग्राम को, जिसका नाम रहेगा आमलन एनीमिया मुक्त लाख्या अभियान। और अगर याद हो आपको तो टीबी मुक्त भारत बनाने की बात कब की गई? 2025 को। नेक्स्ट, उदयपुर होस्ट करेगा पहला G20 शेरपा मीटिंग को इंडिया में। फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू एक्वायर बिस्लरी फॉर अबाउट 7,000 करोड़ रुपीज, ये हमने देखा था। नेक्स्ट आ जाता है बैंगलोर होस्ट करेगा G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग को फरवरी 2023 में। एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विस को इनॉग्रेट किया गया, कहां पर? बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2023 टू बी हेल्ड फ्रॉम 13 to 17 of Feb 2022 इन बेंगलुरु। रेलवेज टू एक्सपोर्ट वंदे भारत ट्रेन्स बाय 25-26।
2026. Then Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin has inaugurated State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited Industrial Park. K. Singh has inaugurated mobile health clinics Dr. Aapke Dwar. S. Jaishankar, who is our External Affairs Minister, has addressed the 7th edition of the Global Technology Summit. Manoj Kumar has inaugurated rehab project in Nainital. Vistara Airlines to be merged with the Air India by March 2024. Next is some awards. Fisheries Ministry has announced National Gopal Ratna Awards for 2022. Tamil writer Imayam has been selected for the Kuempu National Award. Important, mark this. Next, Avni Lakheda has received the Para Sports Person of the Year 2022 award. Next is Panchayati Raj Ministry has won the gold in the e-governance category. Purnima Devi Burman has been honored with the Champions of the Earth award. Important. Ministry of Health has been awarded at 41st IITF 2022. Iranian film नरगेसी इनको अभी आईसीटी यूनेस्को गांधी मेडल मिला एट द IFFI 53 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 53 के दौरान इरानियन फिल्म नरगेसी को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित करा गया. Then Shilpi Guru and National Awards for Handicrafts were conferred recently. छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इन्होंने यूनेस्को अवार्ड को जीता. नेक्स्ट आ जाते हैं मनसुख मांडविया. इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार को न्यू दिल्ली में. और ये जो करंट अफेयर्स है ना फ्रेंड्स, ये वाले वन लाइनर्स हम कल परसों डिस्कस कर चुके हैं, बट दीज आर फॉर रिवीजन पर्सपेक्टिव, ताकि आपके रिवीजन हो सके और बेटर आपको चीजें याद रह सके. फिर फाल्गुनी नैयर, रोशनी नादर, इन्होंने ये वर इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन. यूपी गवर्नर ने इनॉग्रेट किया यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 को. असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया बिल टू क्रिएट सफाई कर्मचारी कमीशन. नेक्स्ट, केरला के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने 27th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लॉन्च किया केरला में. 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो was inaugurated in Goa. Adani Green Energy became the world's largest wind solar hybrid power developer. पीएम मोदी ने अभी फ्लैग ऑफ की 6th वंदे भारत ट्रेन, कहां पर? महाराष्ट्र में. बेंगलुरु टू होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस ट्रैक. नेक्स्ट आ जाता है प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा वर अमंग द 4 इंडियंस ऑन BBC's 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट. इंडिया ने रैंक किया 87th in the world's strongest passport list of 2022 and UAE were ranked as the first. Then 20th काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कहां पर कंक्लूड हुआ? काठमांडू. काठमांडू कहां पर है? नेपाल में. फ्रांस होस्ट करेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि रहेगी स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल. अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल, ये आपकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो किसके द्वारा होस्ट की जाएगी? फ्रांस के द्वारा. यूएस प्रिंट्स इट्स फर्स्ट एवर करेंसी विद 2 वीमेन सिग्नेचर्स. न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन. ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट, रशिया ने रिप्लेस किया इराको एज द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन नवंबर. यूके, फ्रांस, यूएई एक्सटेंडेड द सपोर्ट फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है, याद रखेंगे. देन ग्रुप ऑफ 7 ने अप्रूव किया $15.5 बिलियन की डील विद वियतनाम. नेक्स्ट, एडन हैजार्ड, इन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल. दीपिका पादुकोण ने अनवेल किया फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी ड्यूरिंग द फाइनल्स. सुकांत कादम ने अभी गोल्ड मेडल जीता एट द पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल. ईशान किशन ने स्कोर किया वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI, दैट इज वनडे इंटरनेशनल. दिव्या एस ने गोल्ड जीता इन द वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए. जॉस बटलर एंड सिद्रा अमीन वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर 2022. जो रूट बिकेम द 3rd प्लेयर टू सिक्योर 10,000 टेस्ट रन्स. हैदराबाद स्ट्राइकर को क्राउन किया गया एज द चैंपियन ऑफ द टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के लिए. फिर आ जाते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे. सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु के स्टेट एनिमल जो कि है नीलगिरी ताहार की. ये क्या है? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल. तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या रहेगा? आपका नीलगिरी ताहार. तो इंडिया का पहला प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है टू कंजर्व द एंडेंजर्ड माउंटेन गोट, जिसको नीलगिरी ताहार के नाम से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु का
एक स्टेट एनिमल रहेगा और इसके लिए 24.14 करोड़ रुपीस खर्च करने की बात की गई फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। 2022 से 2027 तक ये 24 करोड़ रुपए खर्च करने की यहाँ पे बात की गई है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया ताकि हम कंजर्व कर सकें, इन नीलगिरी तहार का जो हैबिटेट है उसको एक्सपेंड कर सकें, इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके इन पब्लिक, एंड इसी के लिए एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हायर किया जाएगा। ऑल्सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद एन इनिशियल अलोकेशन ऑफ 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनके द्वारा भी एक सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 को लॉन्च किया गया, एज वेल एज इसी के साथ ही सिटी ब्यूटी कंपटीशन को भी लॉन्च किया गया था। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भी एक सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 को लॉन्च किया, एज वेल एज एक सिटी ब्यूटी कंपटीशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक, अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, इन्हीं ने ये लॉन्च किया 2 की इनिशिएटिव। इसमें से जो पहला की इनिशिएटिव याद रखेंगे वो क्या है, क्या लॉन्च किया, सिटी फाइनेंस रैंकिंग। अब इससे क्या होगा कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग का हो गया कि आपको इवेल्युएट किया जाएगा वेरियस सिटीज को, रिकॉग्नाइज किया जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज को ऑन द बेसिस ऑफ 15 इंडिकेटर्स अक्रॉस द की फाइनेंशियल पैरामीटर्स, कि रिसोर्स एलोकेशन क्या है, कैसे एक्सपेंडिचर चल रहा है, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है फिस्कल ईयर में, उन सब के ऊपर। ये तो हो गया आपका सिटी फाइनेंस रैंकिंग। फिर दूसरा आ जाता है सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन, कि कोई सिटी कितना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, कितना क्लीनलीनेस पे ध्यान दे रही है, कितना ध्यान दे रही है कि हम उसको अपीलिंग बनाए, लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाए, जिससे जो सिटी की रैंकिंग है वो इंप्रूव होगी। तो ये 2 इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किए गए थे, सिटी फाइनेंस रैंकिंग एज वेल एज सिटी ब्यूटी कंपटीशन। और याद रखेंगे ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने G20 का डिजिटल इनोवेशन अलायंस को लॉन्च किया एंड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को। ये डिजिटल इनोवेशन अलायंस क्या है, बेसिकली डिजिटल इनोवेशन मतलब डिजिटल सेक्टर में जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, जो डिजिटल सर्विसेज है, उनको इंप्रूव करने के लिए, उनमें एडवांसमेंट लाने के लिए और नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाने के लिए, ताकि हम उसको फर्दर एक बेनिफिट की तरह यूज कर सकें, उससे बेनिफिट मिल सके हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी आने वाली जनरेशन को। और इसी के साथ साथ एक स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन भी लॉन्च किया गया। और ये स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन बेसिकली क्या है, साइबर अटैक्स को लेके होगा, जहां पे अगर आपके साइबर अटैक्स होते हैं उनके खिलाफ प्रिवेंशन लाने के लिए ये 2 इनिशिएटिव डिजिटल इनोवेशन अलायंस और स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ऑलराइट, और ये G20 डिजिटल इनोवेशन रहेगा। मतलब यहाँ पे G20 के आपके ग्रुप ऑफ 20 यहाँ पे हमें देखने को मिला। इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग एन इवेंट इन न्यू दिल्ली। और यहाँ पे 20 लोग, ये जो आपके नॉन मेंबर नेशंस है ना, वो भी यहाँ पे इनको बुलाया गया था, उनको यहाँ पे इसका पार्ट लिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैम्बू सेक्टर की। देखो, ग्रीन स्टील एक टर्म होता है। ग्रीन स्टील किसको कहते हैं, बैम्बू को कहते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केम्प-गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था। तो उस केम्प-गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपके बैम्बू का बहुत ज्यादा यूज किया गया हुआ है। ठीक है, और एक चीज, जो बैम्बू प्लांट को ग्रो करने में टाइम लगता है ना, वो 10 से 12 साल लग जाते हैं। इसकी ग्रोथ स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत स्लो होती है, लेकिन विद टाइम ये एकदम शूट लेता है और इसकी काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। जो बड़े बड़े हम बांस देखते हैं, बांस को ही बैम्बू कहा जाता है। तो अभी रिसेंटली बैम्बू सेक्टर को बूस्ट लाने के लिए, बैम्बू सेक्टर में बूस्ट लाने के लिए, बैम्बूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि लोगों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा इसमें हमें डेवलपमेंट देखने को मिले बैम्बू सेक्टर में, इसीलिए अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी ग्रुप फॉर बूस्टिंग द बैम्बू सेक्टर। आई रिपीट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अप्रूव किया फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी ग्रुप फॉर बूस्टिंग द बैम्बू सेक्टर। ऑलराइट, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन रहेंगे हमारे, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। फिर इसी से क्या होगा, ये जो एडवाइजरी ग्रुप होगा ये रिप्रेजेंट किया जाएगा वेरियस एकेडमिशियंस के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, इनोवेटर्स के द्वारा, एंटरप्रेन्योर्स, फार्म लीडर्स, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। और यहाँ पे याद रखेंगे जो चेयरपर्सन होगा और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा नेशनल बैम्बू मिशन का, वो कौन होगा, यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। ठीक है, जो पूरी इस कमेटी का ध्यान रखेगा। चलिए फिर बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा अभी एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल को लॉन्च किया गया था फॉर ग्रामीण डाक सेवक के लिए अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल का एम क्या है? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नेंस प्रोसेस बाय लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो ऑनलाइन प्रोसेस ऑल्सो सेव्स टाइम्स एंड रिसोर्सेस। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, उन्होंने रैंक किया वेबकॉस को अमंग द टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म्स इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। वेबकॉस की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, वो क्या है? वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। और यहीं पे अगर हम देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ग्रांट्स देखने को मिलते हैं, वो आपके वेबकोस को ही जाते हैं। ठीक है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये जो रिपोर्ट आई थी मेंबर्स फैक्ट शीट 2022, उसमें भी बताया गया था ये जो द टॉप 3 कंसल्टेंट्स फ्रॉम इंडिया है ना, कंसल्टिंग सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अंडर एशियन डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें आपका जो एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और वाटर से रिलेटेड मेन रहता है। और ये वाटर हमने देखा कि वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ये आपकी वेबकोस है। तो इंडिया में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर हम एक कंपाइल्ड एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया में वाटर, पावर और आपका किस पे? वाटर, पावर एंड एनर्जी, इन चीजों पे वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई के द्वारा भी एक वेब पब्लिकेशन रिलीज किया गया जो कि है स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22, जो कवर करता है एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स की। आई रिपीट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज किया गया था और ये प्रेजेंटेड एंटिटी वाइज इंफॉर्मेशन ऑन मेजर आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अलोंग विद देयर मैच्योरिटी प्रोफाइल, इनकम, एक्सपेंसेस, सेलेक्ट फाइनेंशियल रेशियोज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं द पावर ऑफ वन अवार्ड। इसी को हम बोलते हैं ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी। तो ये द पावर ऑफ वन अवार्ड अभी एट यूनाइटेड नेशन 4 डिप्लोमेट्स और एक यूएस लॉ मेकर को दिया गया था। आई रिपीट, और ये जो अवार्ड दिया जाता है ताकि जो लोग वर्क करते हैं टुवर्ड्स अ पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड, उनको ये अवार्ड दिया जाता है दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन, और इसी को ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में टू प्रमोट अ पीसफुल एंड कॉन्शियस बेस्ड प्रोसेस टू अचीव सोसाइटल गुड एंड आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी एनश्राइन्ड इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर। फिर यहीं पे देखेंगे इस अवार्ड के ये 5 लोग आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा। इन लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अडानी सीमेंट आर्म एसीसी, इन्होंने अभी जीता नेशनल सेफ्टी अवार्ड एट द 10th ग्लोबल सेफ्टी समिट। आई रिपीट, एट द 10th ग्लोबल सेफ्टी समिट अडानी सीमेंट का आर्म एसीसी ने अभी नेशनल सेफ्टी अवार्ड को जीता है ड्यूरिंग द 10th एडिशन ऑफ द ग्लोबल सेफ्टी समिट। ये ग्लोबल सेफ्टी समिट जो था ये आपका, अगर बात करें कहां पर हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में एट ला मेरिडियन होटल इन न्यू दिल्ली। इस यहाँ पर आपका 10th ग्लोबल सेफ्टी समिट हुआ था जहां पर अडानी सीमेंट के आर्म एसीसी को ये नेशनल सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित करा गया। फिर अगर मैं एसीसी लिमिटेड की बात करूं, ये पार्ट है अडानी सीमेंट का। यहाँ पे अगर देखेंगे 17 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं जहाँ पे 83 कंक्रीट प्लांट्स रहेंगे आपके इसके। और यहीं पे अगर मैं बात करूं आपका ग्लोबल सेफ्टी समिट की, ये ग्लोबल सेफ्टी समिट आपका क्या है, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि फायर एंड सेफ्टी फोरम के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जो कि फाउंड की गई थी इन 2007, जो कि एक एनजीओ है। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये बेसिकली क्या है कि वहाँ पर क्या आपके सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाती हैं, उन सब की यहाँ पे बात की जाती है। और उसी के बेसिस पे अभी आपका एसी सीमेंट को नेशनल सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 10th ग्लोबल सेफ्टी समिट। नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल्ला अब्दुल समद दशित। ये अब्दुल्ला अब्दुल समद दशित ये कुवैत के हैं और इनको अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के द्वारा। अब ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया हो तो रशिया और यूक्रेन हम जानते हैं ये वर्ल्ड के क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स थे वीट के। लेकिन
कोविड इनकी जो वॉर हुई इसके टाइम पे हमने देखा यूक्रेन से जो वीट एक्सपोर्ट है ना वो काफ़ी जगह पे बंद हो गए थे ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशंस। तो अब ये बंद हो गए तो काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो इनसे इंपोर्ट कराती थी, तो वहाँ पे तो भूखमरी हो जाएगी अगर देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं जाएगा तो वहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाएगी। तो उस फूड शॉर्टेज को प्रिवेंट कराने के लिए, ताकि लोगों की लाइफ पे इफेक्ट ना पड़े, वहाँ पे खाने का दिक्कत ना हो लोगों को, इसीलिए ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को 2022 में। किसके द्वारा? यूक्रेन, टर्की, रशिया एंड यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को लॉन्च करा गया था। ठीक है, और क्या पर्पस था? ताकि जो ग्लोबल हंगर है उसको प्रिवेंट किया जा सके, जो ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया ट्रायल रन ऑन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन आंध्र प्रदेश हाईवे। मतलब अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है और फाइटर जेट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े, तो वो आंध्र प्रदेश का जो ये नेशनल हाईवे 16 है वहां पर ये 4.1 किलोमीटर लंबा इमरजेंसी लैंडिंग रनवे इसको डिक्लेयर किया गया कि अगर कल को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ पे फाइटर जेट प्लेन्स आपकी यहाँ पे इजिली लैंड कर पाएंगे। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रहेंगे, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज थी आंध्र प्रदेश की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस एक्स की। ऑनर कौन है? इलॉन मस्क। स्टारलिंक के ऑनर कौन है? इलॉन मस्क। स्टारलिंक क्या है? बेसिकली आपकी कॉन्स्टलेशन बना रहा है अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स का, छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं, जिससे क्या होगा, ये इजिली आपके इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएगी इवन इन द रिमोट एरियाज। तो अभी स्पेस एक्स ने फर्स्ट मिशन लॉन्च किया स्टारलाइक का जेन 2 कॉन्स्टेलेशन का। इससे अगर आपको याद हो, इससे पहले स्पेस एक्स ने ही वन वेब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइडर है, वो भी आपका सिमिलरली सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं स्पेस में। वो यूनाइटेड किंगडम की सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है। उन्होंने भी अभी 40 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी अपनी यूजिंग स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, और अभी भी स्पेस एक्स ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से 54 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को लियो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि है लो अर्थ ऑर्बिट LEO, वहां पर उसको ले जाया गया। कहां से लॉन्च किया? केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, जो कि फ्लोरिडा USA में है। और दिस मिशन वाज द स्पेस एक्स 60th मिशन ऑफ द ईयर, मोर देन द डबल नंबर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं एक न्यू ऑनलाइन पोर्टल ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एंड लेटर रेगुलेटरी ऑन रिक्वेस्ट फॉर प्रोब एजेंसी। मतलब ये क्या? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी मतलब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात की जाए। मान लो फॉर एग्जांपल, एक छोटे एग्जांपल से, क्रिमिनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला गया, तो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री को वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, लीगल असिस्टेंस उनको दी जा सके। इसीलिए ये पर्टिकुलर होम मिनिस्ट्री ने डिजाइन किया है एक न्यू ऑनलाइन पोर्टल ऑन MLAT एंड LR रिक्वेस्ट। ठीक है, लेटर रोगेटरी रिक्वेस्ट फॉर प्रोब एजेंसीज के लिए बेसिकली, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं फाइट की। फाइट का मतलब आ गया तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग कर रहे हैं? चेस से। तो फाइट वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो मैग्नस कार्लसन एंड टेन जोइंग, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की स्वीता श्री थी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ जीता है। अगर मैं बात करूं मैग्नस कार्लसन की, इन्होंने 4th रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप को ये जीता। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं फाइट चेस ओलंपियाड की बात करूं, 44th फाइट चेस ओलंपियाड तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। एंड फाइट के जो डेप्टी प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? वो रहेंगे विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद हमारे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के, कब? 1988 में। तो यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनल स्टैंडिंग ऑफ रैपिड की, तो ये मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं जिन्होंने टॉप किया, विंसेंट केमर सेकंड आए और फेबियानो कारुना ये 3rd पोजीशन पे आए। वीमेंस की बात करें तो टेन जोइंग चाइना की हैं, ये आपकी 1st पोजीशन पे। और इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है? सविता श्री भी ये इंडिया की हैं, जो कि 3rd पोजीशन पे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ओडिशा कैबिनेट ने अभी 367.19 करोड़ रुपए का एक ग्रांट अप्रूव किया है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर। वीमेन इन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए वहां पे वीमेन्स को बोलना कि आप अपने खुद के वेंचर शुरू कीजिए, आप अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान दीजिए और खुद अपने आगे बिजनेसेस को बढ़ाइए। इसीलिए अभी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा 367.19 करोड़ रुपीस का ग्रांट अप्रूव किया गया फॉर
वीमेन इन एग्रीकल्चर। ये 5 साल के लिए अपलोड किया गया है, 2022-23 से लेके 2026-27 तक ये इम्प्रूव किया गया है। और ये किस लिए है? ताकि एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन द एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। यहाँ पर क्या होगा, वीमेंस को जैसे चीजें सिखाई जाएंगी, वीमेंस को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे वो अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को एक लार्ज स्केल तक ले जा सकते हैं। इन सारी चीजों का यहाँ पे बात करने की बात की गई और यहीं से इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ग्रांट अप्रूव किया 367.19 करोड़ रुपीस का, ताकि वीमेंस को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये तो हो गई पहली इसकी चीज। अब एक और स्कीम याद रखेंगे, यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया था। वो स्कीम थी 1142 करोड़ रुपीस की। 4 साल के लिए वो स्कीम थी, 2022-23 से 26-27 तक। और इसमें क्या था? डेवलपमेंट ऑफ पोटैटो, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। जो पोटैटो है, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस जो हो गए मसाले, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये आपकी पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी। 4 साल के लिए लाई गई थी, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। और यहाँ पे 1142 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई। यहाँ पे बेसिकली ओडिशा को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात की गई इन 5 वेजिटेबल, जो कि है पोटैटो, अनियन, टमाटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज। ठीक है, और इसी से क्या कि अपनी जो स्पाइसेस हैं उसमें भी ये अपनी सेल्फ सफिशिएंट हो सके, और इतना सफिशिएंट हो सके कि कल को हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सके टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल की। इनके द्वारा अभी एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट को सेटअप करने की बात की गई कर्नाटका में फॉर 255 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट रहेगा। और ये हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट रहेगा, तो मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सोलर की और विंड एनर्जी की। और अगर आपको याद हो तो कुछ एक ऐसा ही प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन्स के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई थी, जो कि विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट ही था। और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं टाटा रिन्यूएबल्स पावर की, टाटा पावर रिन्यूएबल्स की, जो कि इन्होंने भी एक 255 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करने की बात की गई, जो कि विंड एंड सोलर एनर्जी पे चलेगा। और ये कर्नाटका में सेटअप करने की बात की गई। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया इंडिया का पहला प्रोजेक्ट टू कंजर्व नीलगिरी तार। ये स्टेट एनिमल है कहाँ का? तमिलनाडु का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 की एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन को। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया G20 DIA एंड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन न्यू दिल्ली में। एग्री मिनिस्टर ने अप्रूव किया फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी ग्रुप फॉर बूस्टिंग द बैम्बू सेक्टर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल फॉर ग्रामीण डाक सेवक। मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने पार्टनर किया अमेजॉन के साथ फॉर फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रैंक किया वेबकोस को अमंग द टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। फिर आरबीआई ने रिलीज किया वेब पब्लिकेशन स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 21-22 कवरिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग सेक्टर। फिर मैक्स हेल्थ केयर ने पार्टनर किया अनुवा के साथ फॉर जीनोमिक बेस्ड रिसर्च। 4 डिप्लोमेट्स और एक यूएस लॉ मेकर को ऑनर किया गया दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड एट यूएन, जिसको हम ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। फिर अडानी सीमेंट के आर्म एसीसी ने अभी नेशनल सेफ्टी अवार्ड को जीता एट द 10th ग्लोबल सेफ्टी समिट। अब्दुल्ला अब्दुल समद दशित ये कुवैत के हैं और इनको यूएन कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया फॉर द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, और ये 2022 जुलाई में लॉन्च किया गया था। टर्की, यूएन, यूक्रेन एंड रशिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ताकि जो फूड इनसिक्योरिटी ना फैले ड्यू टू द वॉर, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स तक का एक्सपोर्ट था यूक्रेन से वो बंद हो गया था। फिर आईएएफ ने कंडक्ट किया ट्रायल रन ऑन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन द आंध्र प्रदेश हाईवे। और फिर स्पेस एक्स की बात करें, इनका जो पहला मिशन था फॉर स्टारलिंक जेन 2 कॉन्स्टलेशन वो भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है होम मिनिस्ट्री। इन्होंने डिजाइन किया एक न्यू ऑनलाइन पोर्टल ऑन MLAT एंड LR रिक्वेस्ट। फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप की बात करें तो मैग्नस कार्लसन एंड टेन जोइंग इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इंडिया की सविता श्री ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर ओडिशा कैबिनेट ने अप्रूव किया 367.19 करोड़ रुपीस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर। टाटा रिन्यूएबल पावर की बात करें, सेटअप करेंगे 255 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अनाउंस्ड अंडर द स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सेकंड, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री विच स्टेट साइंड सेसेशन ऑफ ऑपरेशन
एग्रीमेंट विद ZUF आर्म्ड फोर्सेस। ये किसका इंसर्जेंट ग्रुप था, किस स्टेट का, ये पूछा जा रहा है, जिसके साथ अभी एक पीस ट्रीटी साइन करने की बात की गई। थर्ड, मैंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वॉज सीन इन न्यूज। ये हैंडेड ओवर बाय इंडियन टू विच कंट्री? इंडिया ने ये मैंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस कंट्री को देने की बात की गई। फोर्थ, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। फिफ्थ आ जाता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक इनिशिएटिव है किस यूनियन मिनिस्ट्री का। तो दोस्तों ये हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चंस आपके। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके जरूर बताना व्हाट आर योर व्यूज ऑन सच सेशंस। और अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसा सेशन लाते रहें तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एज वेल एज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड किए जाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। ऑल्सो आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारी कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे, जहां पर आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप ये क्विज अटेम्प्ट कर पाएंगे और जो भी प्रिपरेशन है वो ईजिली कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.